Assalamu alaikum. Pakistan Studies, Class 10, Lesson number 8, Chapter number 8, Economic Development. Today, our main topics are Irrigation System of Pakistan, Important Canal System of Pakistan. Third one is the Indus Basin Pact. Questions which are we covered in the topic number 3, question number 8, 9, and 10. Question number 8 is briefly describe irrigation system of Pakistan. Question number 9, write a detailed note on the canal system of Pakistan. Question number 10, illustrate the Indus Basin Pact. Our first topic is source of irrigation of Pakistan. The major water sources in Pakistan are the rain, water, ground, rivers. The irrigation system of Pakistan is the largest integrated network in the world. There are three major storage reservoirs, 19 barrages, 12 inter-river link canals, 45 independent irrigation canal commands, and over 122,268 water courses. Groundwater and the water from dams, lakes, and rivers themselves are the major freshwater resources in Pakistan. In Pakistan, sources of water are rainfall, wells, tubewells, water pumps, dams, and barrages, etc. Our first source is canals. The irrigation and canal system of Pakistan is regarded as best among others worldwide. It is also the largest. About three-fourths of the agricultural land of Pakistan comes under this canal system. At present, Pakistan have three large dams and many small dams in the system. These dams are controlled by 19 barrages. A total of 58 canals are included in this system. Among these, 12 are linked and other 46 are normal canals. To utilize groundwater, 0.7 million tubewells have been installed. In Pakistan, canals are the most popular means of irrigation as they supply plenty of water at a very cheap rates. तकरीबन 80% के करीब जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है वो डिपेंड करती है इन कैनाल सिस्टम्स के ऊपर. कैनाल्स की बहुत सी टाइप्स हैं जिनमें कुछ सीजनल कैनाल्स हैं और कुछ परमानेंट कैनाल्स हैं. जब पहाड़ों के ऊपर से बर्फ पिघलती है तो जो रिवर फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वाटर फ्लो जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उस फ्लड वाटर जो होता है उसको जो है फिर इन कैनाल्स जो है उनके अंदर छोड़ दिया जाता है. एक तो पानी स्टोर होता है, पानी सेफ रहता है, और दूसरा ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी नहीं मौजूद होता या बारिशें नहीं होती वहाँ पे कैनाल्स जो हैं या नहरें जो हैं वो खोद कर पानी पहुँचाया जाता है. Our next source is rainfall. Pakistan's water comes from rainfall. Around 60% of precipitation comes from monsoon rains. A significant proportion is distributed during water, December to March. Due to Pakistan's diverse geography, rainfall tends to vary significantly from region to region. Much of the country is arid or semi-arid, with three-quarters of Pakistan receiving less than 250 millimeters of rain per year, and drought are common in many areas. चूंकि पाकिस्तान में एक तो रेनफॉल बहुत कम हो रही है और तकरीबन 3 दहाई कह लें ऐसे एरिया जहाँ पे बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है, और ज़्यादातर जो एरिया है वो या तो बहुत खुश्क है या फिर सेमी एरिड है जहाँ पे हम काश्तकारी तो करते हैं लेकिन वहाँ की ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ नहीं है. तो ऐसे एरियाज़ के लिए पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है. तो चूँकि पाकिस्तान में बारिश जो है वो बहुत कम होती है, और जो बारिश होती है उसके पानी को सेव करने के लिए बड़े बड़े रिजर्व्स बनाए गए हैं, जैसे कि आप जानते हैं तरबेला डैम और मंगला डैम. ये वो रिजर्व्स हैं जो इरिगेशनल डैम्स भी कहलाते हैं, और लैक्स के करीब जो है लैक्स ऑफ एकर्स जो है वो
एरिया जो है उसको इरिगेट करते हैं। और इसके साथ साथ इस पानी से जो है हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा चश्मा जो है उसके मुकाम पर भी रिजर्व्स मौजूद हैं दो, जो कि 5 लाख एकड़ फीट रिजर्व करते हैं वाटर को। Our next source is tube wells. A well consisting of an iron pipe with a solid steel point and lateral perforations near the end, which is driven into the earth until a water bearing stratum is reached when a suction pipe is applied to the upper end. You can see in the picture. Tubes also installed to control the maintenance of water logging and the subsequent salinity, damaging many parts of Indus basins. बेसिकली ट्यूबवेल्स जो है एक बहुत पुराना तरीकाकार है और उन एरियाज में ज़्यादातर लगाया जाता है जहाँ नहरें जो हैं वो मौजूद ना हो और उसके साथ साथ रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा कम हो, तो वहाँ अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको हासिल करने के लिए ट्यूबवेल्स जो है उनको इंस्टॉल किया जाता है। और ट्यूबवेल्स को रन करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स और डीजल इंजन जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ज़्यादातर ट्यूबवेल्स जो हैं वो पंजाब के अंदर लगाए गए हैं और सिंध के अंदर भी मौजूद हैं। बेसिकली ट्यूबवेल्स जो हैं ऐसे एरियाज पे ज़्यादा लगाए जाते हैं जहाँ वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी जैसे इश्यूज जो हैं वो मौजूद हों। Our next source is Carres, a system of irrigation by underground tunnels. बेसिकली ये अंडरग्राउंड टनल्स हैं जो बनाई जाती है जिनके थ्रू पानी जो है उसको सेव किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। In Pakistan, it is confined to province of Punjab, which has a tribal society. Kares is an old and stable irrigation system of Pakistan. क्योंकि बलूचिस्तान का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो पानी जो है उसको एवेपोरेट होने से रोकने के लिए और पानी को सेव करने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। Our next source is wells. A well is an excavation or structure created in the ground by digging, driving, or drilling to access liquid resources, usually water. The oldest and most common kind of well is a water well to access groundwater in the underground aquifers. The well water is drawn up by a pump or using containers such as buckets that are raised mechanically or by hand. Wells have traditionally been sunk by hand digging, as is the case in rural areas of the developing world like Pakistan. There are many wells in our country, even today, where there is no supply of piped water. वेल का पानी जो है वो मूनसून सीजन जब आता है तो उसके अंदर ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यही पानी जो खुश्क तरीन इलाके होती हैं या कह लें कि जो खुश्क साली का शिकार इलाके होते हैं वहाँ पे वाटर लेवल जो होता है वो नीचे गिर जाता है। ये बहुत पुराना मेथड है जो सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत से एरियाज के अंदर वेल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाती हैं। और वेल से जो पानी है वो एक गहरा जो है सुराख करके उसमें से पानी जो है उसको निकाला जाता है, पानी को हासिल किया जाता है और इसको हासिल करने के लिए मैकेनिकली टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं या फिर कह लें कि बकेट्स वगैरह जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। मैकेनिकली अगर नहीं भी निकालते तो सिंपल सादा तरीके से बकेट के थ्रू जो है पानी उसको बाहर बकेट के थ्रू पानी जो है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। Our next topic is springs. A spring is a point at which water flows from an aquifer to the earth's surface. In Pakistan, the mountainous area in northern, there are countless such springs. One of the hot spring rich area is Garam Chashma. स्प्रिंग्स जो हैं उन्हें भी एज अ वाटर सोर्स जो है पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से स्प्रिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो चश्मे मौजूद हैं वो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर हैं।
इसके अलावा पंजाब और सिंध के एरियाज में भी ये चश्मे मौजूद हैं. Our next topic is canals of Pakistan. Basically, canals are used to fetch the river water to the agricultural field. पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 150 years old extensive canal network जो है वो मौजूद है और वर्ल्ड वाइड फेमस जो कैनाल सिस्टम है वो पाकिस्तान का है. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज डैम्स, बैरेजेस और लिंक कैनाल्स भी जो हैं वो इसके साथ मौजूद हैं. और ये सारा सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है हमारे 5 रिवर्स के ऊपर, जिनमें सबसे अहम इंडस, झेलम और चेनाब है. दे हैव मैक्सिमम वाटर इन समर एंड मिनिमम वाटर इन विंटर्स. और 84% टोटल वाटर फ्लो जो होता है वो इन रिवर्स के अंदर होता है. पाकिस्तान चूंकि एक एग्रीकल्चरल स्टेट है तो उसके लिए कैनाल सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना और अच्छा होना बहुत जरूरी है. Our next topic is types of canals. There are 3 types of canals as under. First one is perennial canals. Those canals in which water flows throughout the year are called perennial or a permanent canals. These canals supply water to the areas where the underground water is salty, like district of Jung, Toba Texing and Faisalabad. यानी ये ऐसी कैनाल्स होती हैं जिनका जो वाटर फ्लो होता है वो सारा साल जो है वो चलता रहता है और इनका बेसिकली काम जो होता है वो ये होता है कि ऐसे इलाकों को पानी सप्लाई करना जहाँ का पानी या तो नमकीन हो या जहाँ पे जो और कोई सोर्स ना हो पानी का. Our next point is non-perennial canals. Those canals in which water cannot flow throughout the year are called non-perennial or non-permanent canals. बेसिकली इन कैनाल्स में जो वाटर होता है वो 6 मंथ जो होता है वो चलता है और 6 मंथ नहीं काम करता. These canals supply the water to mostly district of Punjab and Sindh. Third one is inundation canals. Inundation canals जो होती हैं उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. First one is flood canals. Those canals in which the water flows only in the rainy season. यानी जब बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे तब ये canals जो हैं वो रन होंगी. Second one is link canals. Link canals are those canals which are used to connect the water of rivers. These canals are dug in Pakistan according to Indus Water Treaty in 1960. These canals put the water of 3 main rivers of Pakistan, Indus, Jhelum, Chenab, into the 2 rivers Ravi and Satluj. Our next point is important canals of Pakistan. There are many types of canals in Pakistan. Some important canals are: first one is the canals of river Ravi. Second one is the canals of river Chenab. Third one is the canal of river Jhelum. Fourth, the canals of river Satluj. Fifth one is the canals of river Indus. The canals of river Ravi. अब जो सी इंपॉर्टेंट कैनाल्स रावी रिवर के साथ जो लिंक करती हैं उनमें बालोकी सुलमान की लिंक कैनाल 1, कैनाल 2, अपर बारी दुआब कैनाल, लोअर बारी दुआब कैनाल आती हैं. The upper Bari Doab is an old canal which was constructed in 1861. और ये कैनाल्स जो हैं वाटर प्रोवाइड करती हैं लाहौर को, देपालपुर को, कसूर, साहिवाल, पाकपतन, विहाड़ी एंड खानेवाल को. Next one is the canals of river Chenab. There are 3 types of canals: the upper Chenab canal, lower Chenab canal, रंगपुर canal. और बेसिकली ये रचना दोआब का जो एरिया है उसको इरिगेट करते हैं. इसके अलावा जिस एरिया को ये एरियाज को इरिगेट करते हैं उनमें सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, जंग, टोबा टेक सिंह और मुल्तान के एरियाज आते हैं. The canals of river Jhelum. There are 2 types of canals: the upper Jhelum canal, the lower Jhelum canals.
ये कैनाल्स जो है जज डुआब जो है उसके एरिया को जो है इरिगेट करता है। अब इसमें द अपर झेलम जो है और अपर चेनाब एंड लोअर बड़ी दुआब जो है वो ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसका हिस्सा है। रसूल कादराबाद बलोकी बलोकी सुलेमान की लिंक कैनाल्स और वेस्टर्न रिवर्स विद ईस्टर्न रिवर्स जो हैं वो आपस में लिंक करते हैं। दीज कैनाल्स इरिगेट द एरियाज ऑफ मंडी भावलदीन झेलम गुजरात सरगोदा एंड खुशाब। The canals of River Satluj. In this area, Satluj Valley project has started. Four headworks have been built there, three on River Satluj at Firoz, Sulmanki and Islam, whereas fourth on the Panchnath. These canals irrigate the areas of Nilibhar and Bhavalpur. अब इस रिवर सतलुज की जो इम्पोर्टेंट कैनाल्स हैं उनके अंदर कैनाल देपालपुर, कैनाल भावल, पाकपतन, कानपुर, फोरविदा, ईस्ट सदीकिया, मालसी, अब्बासी और कैनाल पंचतत आती हैं। The canals of River Indus. Important barrages and canals of River Indus are as under. First one is Chenab barrages. चेनाब बैरेज जो है उसको 1947 जो उसमें कंस्ट्रक्ट किया गया नियर कालाबाग। द कैनाल्स फ्रॉम दिस बैरेज इरिगेट द डेजर्ट एरियाज ऑफ थर। नेक्स्ट वन इज चश्मा बैराज। A barrage has been constructed at the चश्मा और ये डीजे खान और डीआईए खान जो है उसको इरिगेट करता है। नेक्स्ट वन इज तोनसा बैराज। तोनसा बैराज जो है उसे 1958 में जो है कंस्ट्रक्ट किया गया और इसका काम जो है डीजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के जो एरियाज हैं उन तक पानी को सप्लाई करना है। नेक्स्ट वन इज गुड्डू बैराज। द गुड्डू बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1962 और इसका काम जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के जो एरियाज हैं उन तक पानी जो है उसको सप्लाई करना और इस बैरेज से 3 कैनाल्स जो हैं वो निकलती हैं। नेक्स्ट वन इज सक्कर बैराज। सक्कर बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1932 और ये रिवर इंडस के ऊपर बनाया गया और ये सबसे बड़ा बैराज है पाकिस्तान का और 7 कैनाल्स जो है इस बैराज से निकाली गई हैं जो कि सिंध को इरिगेट करती हैं। नेक्स्ट वन इज कोटरी बैराज। अनदर बैराज ऑफ पाकिस्तान इज कोटरी बैराज। 4 कैनाल्स जो है इस कोटरी बैराज जो है उससे निकाली गई हैं और इनका काम हैदराबाद, संघर, नवाबशाह, बदीन, मीरपुर खास और छठा जो है उनको इरिगेट करना है। कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी बीच में शामिल हैं। टू इंक्रीज द सोर्स ऑफ इरिगेशन द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मैनी न्यू प्रोजेक्ट्स लाइक गोमल जमजम, गरारथल कैनाल, रैनी कैनाल, मेरानी कैनाल, डैम, सबकजी डैम, सतपारा डैम और एक्सपेंशन ऑफ मंगला डैम जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। Our next topic is Indus Water Treaty. Background. The Indus Water Treaty is a water distribution treaty between India and Pakistan, brokered by the World Bank to use the water available in the Indus River and its tributaries. The Indus Water Treaty was signed in Karachi on 19 September 1960 by Jawaharlal Nehru and Ayub Khan. This agreement took 9 years of negotiation and divides the control of 6 rivers between the two nations once signed. इस ट्रीटी के मुताबिक इंडिया जो है उसका कंट्रोल जो वो ब्यास, रावी और सतलुज के ऊपर होगा जबकि पाकिस्तान जो है उसका कंट्रोल जो इंडस, चेनाब और झेलम के पानी के ऊपर होगा। Our next point is Indus Basin Pact. In this, our first point is Indus Water Treaty. सबसे पहले पाकिस्तान के पास जो वाटर सोर्सेस थे उनमें ईस्टर्न रिवर्स जो है पाकिस्तान के वो इंडिया के हवाले कर दिए गए जिससे पानी की जो है कमी का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा और इस कमी को रोकने के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है उनको एक्सटेंड किया गया ताकि जो वाटर शॉर्टेज है उसको जो है कम से कम किया जा सके, इस मसले को हल किया जा सके और इस मसले को हल करने के लिए जो प्लान्स बनाए गए उन्हें इंडस वाटर प्लान्स कहा जाता है।
इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स जो है उन पे काम किया गया. द प्रोजेक्ट्स includes the construction of two dams, six barrages, and seven link canals. Through these canals, the eastern rivers are fed by the western rivers and cultivate the areas of eastern rivers. उसके साथ साथ मल्टीपर्पज पर्पज प्रोजेक्ट्स जो हैं जैसे कि टरबेला और मंगला जो है उनको डिजाइन किया गया, क्योंकि इन दोनों डैम्स का काम सिर्फ पानी को सप्लाई नहीं करना था बल्कि उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको भी प्रोवाइड करना था. लाइक टरबेला डैम जो है उसे इंडस रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया और ये 97 किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो 11.3 मिलियन एकड़ फीट के करीब है. और मंगला डैम जो है, मंगला डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर झेलम और इसकी जो वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है. और इसके साथ साथ द वाटर इज सप्लाइड थ्रू कैनाल्स टू एरियाज सर्व्ड बाय द ईस्टर्न रिवर्स. और इन डैम्स के थ्रू जो वाटर सप्लाई किया जाता है वो लिंक कैनाल्स के थ्रू किया जाता है, जो कि 7 लिंक कैनाल्स हैं. जैसे कि चश्मा जो है वो जेलम के ऊपर बनाई गई है, कादराबाद बलोकी है, ट्रिमू है जो सिडनी के ऊपर है, तौनसा है पंचनद के ऊपर, फिर रसूल का हैदराबाद है, बलोकी सुलमान की है, और फिर मैलसी है भावलपुर एक्सेट्रा. सेवन लिंक कैनाल्स जो है उनका बेसिकली मकसद जो है जो एरिया जहाँ तक पानी नहीं पहुँच सकता या रेनफॉल नहीं होती उन तक पानी पहुँचाना है. टोटल लेंथ ऑफ दीज लिंक कैनाल्स आर 590 किलोमीटर. और जो कैनाल्स का काम है वो ये है कि वेस्टर्न रिवर से वाटर को ईस्टर्न रिवर जो है उस पे सप्लाई करना है ताकि शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है उसको कंट्रोल किया जा सके. जैसे इंडस झेलम और चेनाब है, यहाँ से पानी जो है रावी और सतलुज जो है वहां तक पहुंचाना है. Okay students, today your home task is learn the question number 8, 9 and 10. Okay students, I hope you understood all the questions and topics very well. Learn your home task on time. Thank you.